A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed a lots of the important topic related to the part B of class 11th accountancy. That is a financial statement of sole proprietorship with adjustment, without adjustment, as well as the accounts from incomplete record, as well as in the last video we discussed the concept of computerized accounting system and advantages of the computerized accounting system. So now let's be discussed in today's video, that is in what is information and information system. You know very well, before the uh, detailed description and detailed discussion upon the information system, let's we take the few important points related to the computer system. As you know very well, from the beginning, you can study about it, what is a computer, and you know very well, a computer is an electronic device or machine which is capable of performing a variety of operation as directed a set of the instruction called a computer. The term computer is derived from the Latin word computere, which means the compute. And the short meaning we can say that it is useful for the processing raw data into the meaningful information. And with the help of the computer, we process the raw data. हम क्या करते हैं, जो बिजनेसेस के जो रॉ डाटा है उससे हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं. Okay, so what is a computer system? With the help of the computer system, we take the lots of the raw data and process such data into the meaningful information. Just like it is, suppose the raw data is 2 plus 2 and जब हम इसको process करते हैं, so the information is 4. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी हम कंप्यूटर में कोई चीज इंटर करते हैं तो वो कंप्यूटर सिस्टम अपने प्रोग्रामिंग की हेल्प से, अपने सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या करता है, उस डाटा से एक इंफॉर्मेशन जनरेट करके हमें प्रेजेंट करता है. उसी तरह से बिजनेस में लॉट्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर ऑकर्ड, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स वी फाइंड आउट द income position of the business, as well as the position of the assets, liabilities and the capital of the business at the end of the particular year. So you can see that जब भी हम बिजनेस के डाटा को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के साथ साथ उस ट्रांजेक्शन से बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब फाइंड आउट करने के लिए वी विल talk about the information and information system. As you know very well, if we are talking about the information system, so before that we have a sufficient knowledge about the component of the computer system, that is in hardware, software, humanware, procedure, data, connectivity. So these are the important component of the computer system for the accounting purpose. The first one is the hardware, like a motherboard, processor include, and the primary storage memory, secondary storage memory, keyboard, sound card and speakers, monitor and LCD, printers, as well as the second important component of the computer accounting system is the software include different types of the software, like operating system, utility programs, application software, language processor, system software, connectivity software. And the third important component of the computer accounting system is a humanware, like people. And people is a very important constitute and most important part of the computer system, that is in system analysis, programmers and operators. Procedure, data you know very well, data are an important which are gathered and entered into a computer system. The computer system is store, retrieves, classifies, organize and synthesize the data to produce the meaningful information for the users. So data is very important, because without data we cannot work on the computer, and we cannot draw up a significant information for the users. So all the things are surrounding all the things are
surrounding on the information and information system under the accounting information system. So information का मतलब बेसिक यही होता है कि इंफॉर्मेशन जो रॉ डाटा से हमें मिलती है और इस इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए हम एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक प्रॉपर, जिसे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं, दैट इज एन, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो अप करते हैं, एंड सच प्रोसीजर विल बी नोन एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. Okay, so without creating any delay, let's we move to the today's topic, that is in what is information system. Okay, okay, so you can see that there are basically few important component of the computer accounting system, that is an components of computer system, that is in hardware, software, as well as the humanware, that is known as the people, procedure, data, connectivity, so these are the important 6 component of the computer accounting system. Without these types of the component we cannot work on the computer. Okay, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि what is the meaning of information system. Accounting information system आप जानते हैं, लेकिन what do you mean by information system? So please note down in your copy. It is an integrated set of component. It is an integrated set of components. Okay, so information system क्या है? Integrated set of component है, जो different component हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में. Integrated set of component for collecting, storing and processing data for delivery information, delivery information, knowledge and digital products, कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो आप इजीली बता देना 1 मार्क्स में कि what is an information system. So information system, it is an integrated set of component for collecting, storing and processing data for delivering information, knowledge and digital products. Means information system एक integrated set of component होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जिससे हम एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकें, नॉलेज जनरेट कर सकें और उस इंफॉर्मेशन को एज अ प्रोडक्ट, एज अ डिजिटल प्रोडक्ट हम लोगों को सर्व कर सकें. ये यानी बेसिकली एक रिपोर्ट बनाकर हम फाइनली अपने मैनेजमेंट्स को प्रेजेंट कर सकें. ओके, सो दीज आर द बेसिक मीनिंग ऑफ द कंप्यूटराइज अकाउंट, दैट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. द नेक्स्ट वन इज अ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. ट्रांजेक्शंस प्रोसेसिंग सिस्टम, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीपीएस, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. A transaction processing system is an information processing system for business transaction involving the collection, modification and retrieval of all transaction data. यानी TPS क्या है?
टीपीएस एक प्रकार का इंफॉर्मेशन सिस्टम है. टीपीएस इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. Information system. TPS is an information system for business transaction. For what? For business transaction involving the collection, modification and retrieval of all transaction data. यानी बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, ट्रांजेक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द इवेंट्स मीन द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन. यानी डे टू डे, यू नो वेरी वेल, हम गुड्स को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, वेजेस पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं. तो बिजनेस में एक दिन में कई तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं. तो उन ट्रांजेक्शन्स से रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए, रिजल्ट को पता करने के लिए, फर्स्टली वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एक तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसमें बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन है, ऑल दी ट्रांजेक्शन, हम उनको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, रिट्राइव करते हैं. ओके, ऑफ द ऑल ट्रांजेक्शन डाटा. यानी बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन डाटा है, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं, उनको हम कलेक्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, रिट्राइव करते हैं. ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, जैसे अगर आप, द पर्पस ऑफ टाइपिकल टीपीएस इज टू रिकॉर्ड, process, validate and store transaction that occurs in the various functional areas of the business or for subsequent retrieval and usage. कुछ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग डाटा को हम ऐसा सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं कि अगर वो ट्रांजेक्शन बार बार होगा तो उस ट्रांजेक्शन को हमें बार बार रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती. जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश विड्रॉवल एट एन एटीएम. एटीएम एक कंप्यूटर सिस्टम है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. आपके पास एक कार्ड होता है, आप कार्ड को एंटर करते हो, वो आपके उस कार्ड के बेसिस से क्या लेता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के बेसिस पे वो सारे डाटा को लेता है और आपसे एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए और एक कह सकते हो एक एथोराइजेशन के लिए आपसे पिन मांगता है. आप पिन डालते हो और जितना आप इंस्ट्रक्शन देना चाहो, जैसा इंस्ट्रक्शन देकर पैसा निकालना है, बैलेंस चेक करना है, मनी ट्रांसफर करना है, पिन चेंज करना है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है. तो ये बहुत बड़ा एलिमेंट है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का, जिसमें वो डाटा को क्या करता है, एक तरह से कलेक्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उसको रिट्राइव कर सकता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज which is very useful in our organization, especially in the management field, that is a management information system. इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था कि what is a management information system. Basically, you know very well, हर बिजनेस में दो तरह की स्टाफिंग होती है. एक होता है मैनेजमेंट स्टाफिंग और एक होता है ऑपरेटिंग स्टाफिंग. मैनेजमेंट स्टाफिंग का मतलब होता है कि जो लोग पूरे ऑपरेशनल स्टाफिंग्स को मैनेज करेंगे, यानी ऑपरेशनल स्टेज पे कह लो और एक मैनेजमेंट स्केल पे कह लो. और आप लोगों को पता है मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल. तो टॉप लेवल को एक तरह से कह सकते हो मैनेजमेंट लेवल. सो मैनेजमेंट को मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल से डाटा चाहिए. डाटा चाहिए मीन्स उनकी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड चाहिए, उनसे फीडबैक चाहिए. और इनपुट कौन देता है, टॉप लेवल इनपुट देगा और आउटपुट किससे चाहिए, सुपरवाइजरी लेवल से चाहिए. और उस टॉप, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करने वाला कौन रहेगा, मिडिल लेवल. सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बहुत ही पॉपुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें होता क्या है, बेसिकली मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन विच वी प्रोवाइड द सुटेबल एंड कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द नीड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द मैनेजमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हैं. मैनेजर्स को उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए उसे क्या चाहिए, बिजनेस की डाटा चाहिए.
बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के हम डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में कोई जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो प्राइस इंक्रीज होने के लिए वो पहले से उसे डिसीजन लेना पड़ेगा कि ऐसा हम कर सकते हैं कि हम इन्वेंट्री को ओवर स्टॉक कर ले, इन्वेंट्री को और अधिक खरीद लें एट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो उसके लिए उसे अपने स्टोर कीपर से या स्टॉक डिपार्टमेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा, और स्टॉक डिपार्टमेंट कंसल्ट करने तभी जाएगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास या मैनेजमेंट के पास, जब उसके पास उसको अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन होगी। और इंफॉर्मेशन क्या होती है, पहले मैनुअली होती थी, लोग रिकॉर्ड प्रिपेयर करते थे, अब सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड हो गई। तो वहां कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम क्या है, डिसीजन लेने के लिए उनके पास प्रॉपर सफिशिएंट रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए या अवेलेबल होनी चाहिए। सो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बाय विच वी टेक अ सुटेबल डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्टली मैनेजमेंट क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है, उस डाटा से इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। डाटा का मतलब क्या है, अगर एक बिजनेस में हम कहें तो डाटा मीन्स क्या है, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, जो बिजनेस में डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन मैनेजमेंट जब भी कोई डिसीजन लेता है तो उसमें दोनों तरह के ट्रांजेक्शन इवेंट्स कंसीडर किए जाते हैं। फर्स्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब जो बिजनेस को मॉनेटरी टर्म में इफेक्ट नहीं करते लेकिन क्वालिटेटिव चीजों में इफेक्ट करते हैं। बट क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, जिसको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे स्ट्राइक हो गया बिजनेस में, तो स्ट्राइक हुआ तो ये इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ किसी ने लीव ले लिया या कह लो कि गुड्स हमने परचेस किया लेकिन हमारा गुड्स क्या हो गया, लॉस बाई फायर हो गया, जल गया, तो उसको मनी में मेजर कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटी बिजनेस में ऐसी होती हैं विच कैन बी इजिली मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स, बट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इंसिडेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेने से पहले डाटा को कलेक्ट करने के लिए दोनों तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वेदर इट इज एन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। फिर उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, यानी उससे एक स्पेसिफिक रिपोर्ट जनरेट करता है। फिर उस रिपोर्ट को लोग स्टडी करते हैं, ठीक, स्टडी करने के बाद लोग क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली आपको पहले भी बताया गया है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड इन टेकिंग वेरियस डिसीजन। MIS is viewed and used by management at many levels such as operational, tactical and strategic. MIS is the supportive of the institution's long-term strategic goals and objective. And MIS is basically concerned with processing data into information which is then communicated to various departments in an organization for the appropriate decision making. Okay, so आई होप कि आज आपको हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्या कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने आज? कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है, दैट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ओके, सो प्लीज नोट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर कॉपी प्रॉपरली। So after completing the last unit of your syllabus, that is in computers and accounting and computerized accounting system, let's we move to the next unit of your syllabus, that is in unit number 3, financial statement. Basically जो ये यूनिट है उसमें जो ये कॉमन चैप्टर है दैट इज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर है वो है विदाउट एडजस्टमेंट, यानी जिसमें एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन। ओके, एंड सेकेंड वन इज अ विद एडजस्टमेंट। सो अगर आप अपनी बुक उठा के देखे होगे अभी तक, वैसे मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा लिया है, लेकिन अगर आप सेकेंडली रिवाइज कर रहे हो तो यू कैन सी दैट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कई सारे वीडियोस बने हैं। तो उसमें जो पहला सेगमेंट है, पहला पार्ट है वो है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, जिसका चैप्टर का नाम आपकी बुक में होगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, एंड सेकेंड है विद एडजस्टमेंट में, अगर आप देखोगे तो सिर्फ लिखा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर विद एडजस्टमेंट, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है विद एडजस्टमेंट। सो दोनों ही चैप्टर आगे पीछे ही हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट है जो मैंने ऑलरेडी आपको ऑनलाइन क्लासेस में बता दिया है कि व्हाट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन स्टेटमेंट व्हिच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साल के एंड में बनाते हैं ताकि वो अपने बिजनेस का क्या पता कर सकें। दो चीजें, टू थिंग्स, द फर्स्ट वन इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट, मतलब वो बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है, अपवर्ड ट्रेंड है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है कि नो ट्रेंड है। ऑल द थिंग्स आर बी फाउंडेड बाय द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। और सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वन मैन आर्मी, यानी यहाँ पर आपको सिर्फ वन पर्सन का ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, एक बंदे का, यानी कि वही उस बिजनेस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, मॉनिटर करेगा, मैनेज करेगा, और सारे डिसीजन, ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द वन पर्सन। सो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में फर्स्टली वी प्रिपेयर दी ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था, एंड सेकेंड वी प्रिपेयर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, so in the financial statement of sole proprietorship, firstly we prepared the profitability statement, that is an trading account which include the trading account and profit and loss account, and second one will be a positional statement which is include only one statement, that is in balance sheet. Okay, profitability statement को हम लोग income statement भी कहते हैं। So अगर आप बुक में देखोगे तो you can see that कि in the financial statement of sole proprietorship, there are basically two statement are included in it. The first one is the income statement, second one is the positional statement. In the income statement we prepared the trading account and profit and loss account, and in the position statement we prepared the balance sheet. बार बार मैं एक ही चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कम से कम थ्योरी तो पता चल जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसका इसमें कितने स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या होता है। सो विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली वी फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट हम ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ओके, सो फर्स्ट आप लोग वन बाय वन इसको लिखते भी चलो कॉपी में। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं। इन द बैलेंस शीट वी फाइंड आउट द कैपिटल, लायबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस एट द एंड। यानी विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट हम बिजनेस क्या पता करते हैं, कैपिटल कितना है बिजनेस का, लायबिलिटीज कितनी है और एसेट्स कितनी है, कब, एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर डे। ओके, सो आफ्टर दैट next we discuss about the users of financial statement. Why we prepare the financial statement? हम financial statement क्यों बनाते हैं, यानी बिजनेसमैन जब बिजनेस कर रहा है तो उसे एट द एंड ऑफ द ईयर पता होना चाहिए ना कि उस बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, कैपिटल मतलब जितना पैसे उसने शुरू में इन्वेस्ट किया था अब उसका कैपिटल कितना है, नाउ कैपिटल। लायबिलिटीज मतलब अमाउंट हम कितना देते हैं, उधार जिसे कहते हैं, एंड एसेट्स मतलब उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, नाउ। सो कुछ चीजें जो होती हैं
जो हर यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू पता करना चाहता है. सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो दैट्स यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल statement. So why we prepared the financial statement? To communicate the relevant information to the users. अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इसलिए बना रहे हैं ताकि उसको उसके इंटरेस्टेड यूजर हैं उसको यूज कर सके. जैसे एट द एंड ऑफ द ईयर आपका एक रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर होता है जिसमें आपकी स्टेप बाय स्टेप आपकी जो एग्जामिनेशन है UT1, हाफ ईयरली, UT2 एंड फाइनल एग्जामिनेशन की एक रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर होती है पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट. वैसे ही बिजनेस भी अपना एट द एंड ऑफ द ईयर अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है जिसमें वो पता करना चाहता है कि इस साल उसने जो भी एक्टिविटी की उससे उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ. विद द हेल्प ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट कैन डिसाइड अ सिग्निफिकेंट डिसीजन अबाउट द कंपनी और अबाउट द बिजनेस. यानी बिजनेस के बारे में अगर हमें डिसीजन लेना है तो हमें पता होना चाहिए कि हम कल क्या थे, आज क्या हैं और आगे क्या हो सकते हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो इनके अपने अपने डिफरेंट क्या होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं. जैसे पहले तो हम यूजर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. बेसिकली यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी क्लासिफाइड विद द टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज द इंटरनल यूजर एंड सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल यूजर. इंटरनल यूजर्स वो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो बिजनेस की हर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, हर इंफॉर्मेशन के बारे में पता करना चाहते हैं. जैसे ओनर्स, वो बिजनेस की हर इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं. सेकंड मैनेजमेंट को तो पता ही आपको, मैनेजमेंट को अगर पता नहीं होगा बिजनेस की इंटरनल इंफॉर्मेशन सो वो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले सकता. थर्ड वन इज एन एम्प्लॉय तो ही सारी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है. एम्प्लॉय ही सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन उससे रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है. तो मुझे लगता है कि इंटरनल यूजर की अगर हम बात करें तो ओनर एंड मैनेजमेंट आर रेडी टू यूज द इंफॉर्मेशन डेराइव फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसे ओनर और मैनेजमेंट किस लिए यूज करना चाहता है, बिकॉज ऑफ टू टेक अ रिलेवेंट डिसीजन फॉर द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस. एंड एम्प्लॉय क्यों लेना चाहता है, क्योंकि वही तो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, वही तो इंफॉर्मेशन बना रहा है और वो इसलिए भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है ताकि वो अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्टस देख सके कि क्या वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंटिन्यू रखना चाहता है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसे ज्यादा सेफ और सिक्योर देखने को मिल रहा है. ओके. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल यूजर, तो एक्सटर्नल यूजर किसी न किसी रीजन से बिजनेस की इंफॉर्मेशन को टेकअप करना चाहते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर्स क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर उसको सफिशिएंट रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ओके. सेकेंड विल बी अ क्रेडिटर. वो ये देखना चाहते हैं कि उन्होंने जो पैसा एडवांस दिया है कंपनी को वो पैसा सेफ है कि नहीं सेफ है. एंड गवर्नमेंट देखना चाहती है कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. गवर्नमेंट, बैंक्स as well as financial institution. So you can see that all the external users as well as the internal users are ready to show all the relevant information of the business because of their need. क्योंकि उनको कोई ना कोई नीड है उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन के बारे में. क्योंकि अगर उनको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो अपने फील्ड से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले पाएंगे. सो आई होप आज हम लोगों ने पूरे ऑनलाइन क्लास, पूरे इस क्लास में, वीडियोस में, फर्स्टली वी डिस्कस एंड समराइज, सम अप कह सकते हो, कंक्लूड कह सकते हो. वी कंक्लूड द टू इंपॉर्टेंट things. The first one is the computerized accounting system and computers in accounting system, computer in accounting, and thereafter
हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विदाउट एडजस्टमेंट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।